Hi, Namaste, and welcome back all of you to the part 2 of our revision video series. हाँ जी बच्चों, पार्ट 1 में हम आपके CS एग्जीक्यूटिव करिकुलम के कंपनी लॉ पेपर का पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, का जनरल मीटिंग्स कवर अप कर चुके थे. And now it was turn for the yet another important and a tricky chapter that talks about directors, their appointments, their qualifications, their remunerations, their office tenure, and there were so many points that are covered up in this chapter. हमने इसका पहला सेशन कवर अप करा जहां सेक्शन 149 और 150 जहां मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आफ्टर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कवर अप कर चुके थे. आई एम बिलीविंग आपने इन्हें रिवाइज कर लिया है और चीजें पूरी पक्की कर ली हैं. तो अब आज से जो हमें पढ़ना है, आज के सेशन में जो हम कवर अप करने वाले हैं, दिस वीडियो वुड बी कवरिंग अप some more major sections relating to the appointment of the directors. Yes, we are going to talk about what's there for you on the screen, and that is director's identification number. We are also going to talk about the small shareholder director. We are also going to talk about the appointment of the first and subsequent directors. हाँ जी बच्चों, आज सेक्शन 151 से लेकर 160 यानी कि ये 10 सेक्शंस का बंच हमें कवर अप करना है. इसमें बीच में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जैसे डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट आज कवर अप होगा और उनके ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का. विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 and 7 we'll be covering up. So let's gear up, let's pull up our socks and let's start. Before 151 and 2, we are going to get into the details of some very small bunch of sections that pertains to director's identification number. Director identification number that will be covering up section 153 to 159. So you can be relaxed enough that ये 5-7 sections में आपके छोटे छोटे काफी सारे points cover up हो जाएंगे. Director identification number का मतलब क्या होता है, तो आप सभी ये जानते हैं क्योंकि हम सब इसे एक बार पढ़ चुके हैं पहले, that this is one such identification number that is given to every person who is a director or who intends to be a director in any company. The concept that provides a uniquely awarded number by the central government, एक ऐसा नंबर जो कि किसी भी इंडिविजुअल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. Just like all of you have a unique identification registration number being a student of ICSI, or just like we have a unique membership number being the member of ICSI, and there are so many other unique numbers like that you had in the schools or you have in the colleges or universities. In a similar manner, just so for the purpose of identifying every person as a director, the uniquely identification number, that's what we call in short director identification number, then is allotted to the person. Whether it's a male or it's a female, every person who wants to be or has been a director and is continuing to be the director in any company needs to hold this director identification number. समझे था? चलो आओ देखो सेक्शन इसके संबंध में क्या कहता है. 153 से शुरुआत होती है और जब आप 153 यहाँ पर पढ़ने जाते हैं तो यहाँ हमारे सामने जो प्रोविजन आता है वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरह से मिलेगा, वो सबसे पहली चीज 153 में कवर अप होती है और यहाँ पर हमें साथ में रूल नंबर 9 भी पढ़ना होता है. रिमेंबर इन द लास्ट सेशन आई गिव यू अ ट्रिक. जब भी कोई नया रूल नंबर सामने आए, पुराने रूल नंबर रिवाइज कर लीजिए जो आप पढ़ चुके हैं, बहुत आसान हो जाएगा उन रूल्स को याद रखना. इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड अप रूल नंबर 3 जो कि विमेन डायरेक्टर से जुड़ा था. हमने रूल नंबर 4 भी पढ़ा था जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर बेस्ड था, और रूल नंबर 5 जहां पर अगेन क्वालिफिकेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वो इन डेप्थनेस वाले क्राइटेरिया को लेकर के एक फिगर आया था. देखो ऐसे याद रखोगे तो अपने आप पुराने रूल्स भी याद होते जाएंगे. ठीक है, तो हाल फिलहाल में यहाँ पर सेक्शन 153 हमसे ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो डिन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए की वेबसाइट विद www.mca.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन भर करके प्राप्त कर सकता है. और ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ई फॉर्म DIR 3 में लगाई जाती है.
इस DIR-3 को भरने के संबंध में रूल नंबर 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। और क्या है वो पॉइंट्स? हैव देम फॉर यू ऑन द स्क्रीन। पहला पॉइंट जो है वो आपसे कहता है कि भाई आपके इस ई फॉर्म DIR-3 में आपको जो भी पर्टिकुलर्स या डिटेल्स मांगी जाती है वो सब तो भरना है, पर साथ ही साथ आपको एक फोटोग्राफ उसमें अटैच करना है। आपको उस फोटोग्राफ में आप ही हैं और आप ही अप्लाई कर रहे हैं ऐसा एक फोटो आईडी प्रूफ देना है। आपको अपना रेसिडेंस या एड्रेस प्रूफ देना है। किसी कंपनी में आपको प्रपोज करा जा रहा है एज अ डायरेक्टर, तो फिर उस कंपनी में जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। आपकी स्पेसिमेन सिग्नेचर और इन सब डिटेल्स को इन द ई फॉर्म प्रॉपरली वेरीफाई डिजिटली साइन करने के बाद MCA पोर्टल पर अपलोड करा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इतना बिना पिक्चर के काम नहीं होगा। पिक्चर मतलब कौन सा पिक्चर? टीवी वाला पिक्चर नहीं, फोटो। और पैन ये भी मस्ट है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका होता है, ये परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, कई बार आइडेंटिफिकेशन भी बोल देते हैं हम, परमानेंट अकाउंट नंबर मस्ट है। बिना पैन के दिन का फॉर्म दैट्स DIR-3 फिलअप नहीं हो सकता। सो इट इज मस्ट। ठीक है, यहां एक पॉइंट ध्यान रखो, ये चौथा वाला पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। पैन इज नॉट मैंडेटरी फॉर फॉरेन नेशनल्स। यदि कोई फॉरेन नेशनल है और वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए डिन तो जरूरी है, बट उस डिन को लेने के लिए उसके लिए पैन जरूरी नहीं, उसके लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। हाँ, लेकिन अगर वो फॉरेन नेशनल रेसिडेंट है, सी वहीं पर ही ठीक नीचे लिखा हुआ है पैन इज नॉट मैंडेटरी, द लाइन दैट आई हैव हाईलाइटेड एंड इवन अंडरलाइंड, पैन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फॉरेन नेशनल्स, बट इफ द पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन तो फिर उसके लिए मैंडेटरी है। अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं है, फॉरेन नेशनल है, फॉरेन सिटीजन है, तो हमें पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट मस्ट है। और पासपोर्ट की भी भैया हमें ना अपोस्टल्ड कॉपी चाहिए होती है। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटराइज्ड अपोस्टल्ड, दैट इज सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी हमें चाहिए। So even if you are a foreign national, if you want to be a director in an Indian company, we need DIN. The only thing is that वहां पर पैन के बिना काम हो जाएगा, दैट टू अगर आप नॉन रेसिडेंट नहीं हो तो। अगर नॉन रेसिडेंट हो तो पैन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ गए क्या? इतना क्लियर हो गया? हाँ, ये एक पॉइंट जो बीच का आपके सामने है ये आपसे कहता है कि इन केस अगर आपका फोटो आईडी प्रूफ पर लास्ट नेम नहीं लिखा है, कई बार ऐसा होता है यार कि जब हम ऐसे प्रूफ्स बनवाने जाते हैं तो हमारा नाम इतना बड़ा हो जाता है। जैसे मानिए मैंने पैन के लिए अप्लाई करा, अभी पैन पे फोटो होता है, नाम होता है, तो ऊपर वो फोटो आईडी प्रूफ में मैं लगा सकती हूँ पैन। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा सा है, तो फिर फॉर्म में या तो वो ही छोटा या कम भर देता है या ओवरलुक कर देता है, कारण से आधा अधूरा नाम फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मन्ना लाल शर्मा। अब मन्ना लाल शर्मा ने जब अपना पैन बनाया तो इतनी अवेयरनेस उनमें भी नहीं थी, जिस अथॉरिटी से बनवाया उन्होंने भी उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, और मन्ना लाल शर्मा का नाम सिर्फ मन्ना लाल लिखा गया और उनके पैन पे सिर्फ मन्ना लाल लिखा हुआ है। अब लाल उनका लास्ट नेम तो नहीं है, वो तो मिडिल नेम है, लास्ट नेम तो शर्मा है। और मन्ना लाल शर्मा के जो पिताजी थे, जिनका भी नाम लिखा गया था उस प्रूफ में, पैन पे होता है फादर्स नेम, वो पन्ना लाल शर्मा पूरा लिखा हुआ था। यानी बेटे का नाम सिर्फ मन्ना लाल लिखा है और पिताजी के नाम में पन्ना लाल शर्मा पूरा लिखा है। यदि कभी ऐसा होता है कि आपका लास्ट नेम नहीं है आपके प्रूफ पर, तो ऐसी स्थिति में आप वो लास्ट नेम जो कि उसी प्रूफ पर आपके फादर का मेंशन्ड है या ग्रैंडफादर का मेंशन्ड है, आप उसे अपना सकते हो। साथ ही साथ आपको इसके संबंध में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा DIR-3A में कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं और ये इनका सरनेम है, तो ये मेरा भी सरनेम है और इस कारण से मैं इस सरनेम को अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में एज लास्ट नेम या सरनेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म होता है DIR-3A। एक डिक्लेरेशन आप दिन की एप्लीकेशन यानी ई फॉर्म DIR-3 के साथ अटैच कर दो। बस इतनी फॉर्मेलिटीज आपको ध्यान रखना है। आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए इतना ही ध्यान रखना है।
अब once you fill up all these details in e-form dir3, जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स e-form dir3 में भरेंगे और उसे अपलोड करेंगे, आपके सामने एक प्रोविजनल या टेम्पररी डिन जनरेट हो जाता है, जो कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम परमानेंट डिन ही माना जाएगा, अनटिल अनलेस आपके डिन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं या उसमें कोई भी फ्लॉ पता चल रहा है जिसके चलते अथॉरिटीज आपका डिन रिजेक्ट करें। यहाँ पर सेक्शन 154 में जरूर हमसे कहा गया है कि विद इन 1 month ऑफ द एप्लीकेशन द गवर्नमेंट हैज टू अलॉट द डिन, बट ये 1 month जितना समय नहीं होता है। ऑन अ इमीडिएट बेसिस यू आर अलॉटेड अ डिन, प्रोविजनल डिन कहते हैं उसे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फ्लॉ या कमी नहीं है, गलती नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वही आपका परमानेंट डिन होता है। 99.9% of the times we make sure that the documents that are attached to the application do not have any flaw, उनमें कहीं कोई भी गलत चीज ना हो, ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कोई चांस ना। तो 1 month तो बहुत लंबा समय। द मोमेंट आई अपलोड द फॉर्म ऑन द पोर्टल आई एम गिवन अ प्रोविजनल डिन एंड दैट बाय फार हैपेंस टू बी द फाइनल डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैं जिन जिन कंपनी में डायरेक्टर हूं उन सबको मैं इंटीमेट कर देती हूँ, ठीक है। किसी कंपनी में बन रही हूँ तो साथ में इस डिन के साथ में अपनी कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर भी उन्हें देती हूँ। ये फिजिकल फॉर्म DIR2 में दिया जाता है और फिर वो कंपनी मेरे अपॉइंटमेंट के 30 डेज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म DIR12 फाइल कर देती है, जिसमें मेरी सारी डिटेल्स जाती है कि मैं किस कंपनी में डायरेक्टर बनी हूँ। दैट इज टू बी गिवन विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। गॉट दैट? क्लियर हो गया? इतना समझ गए सब लोग? ये देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है दैट आई हैड हाईलाइटेड फॉर यू इन द वेरी बिगिनिंग ओनली। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइफ टाइम वैलिड होता है और एक बार जो नंबर आपको मिल गया वो दोबारा किसी और को नहीं मिलता है। यूनिक नंबर ना, why do we call it as identification number? If two people are going to have one identification number, how will I differentiate? How will I differentiate? पिंटू और चिंटू दो अलग लोग हैं, तो पिंटू को भी वही नंबर मिला जो चिंटू को मिला, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा कि पिंटू कौन है और चिंटू कौन है? डिफरेंशिएट करना था ना पिंटू और चिंटू में। अच्छा, चिंटू नाम के दो लोग हैं, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि चिंटू दो अलग अलग कैसे हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक नंबर दैट इज गिवन ओनली टू वन पर्सन एंड नॉट टू एनी अदर पर्सन। वैलिड फॉर लाइफ टाइम, वैलिड फॉर लाइफ टाइम, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका नंबर आपका रहेगा। क्लियर विद दिस? चलिए 155 पर आगे बढ़िए। आगे छोटे छोटे से सेक्शन 155। पहला सेक्शन जो कि आपसे कह रहा है 154 के बाद कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा डिन नहीं रख सकता। That's something quite obvious. Why will you have two identification number? When you are one individual, you have to have only one identification number. Only one. ठीक है? हाँ, आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैडम गलती से मिल गए दो या ले लिया दो, अथॉरिटीज ओवरलुक कर दी, सिस्टम में फॉर्म भर दिया, एक्सेप्ट भी हो गया, दो मिल गया, तो क्या होगा? तो ये आएगा नीचे आगे आपके, जहां पर कैंसिलेशन सरेंडर पढ़ोगे इस पर आएंगे, बट पहले बचे हुए दो और सेक्शन पढ़ लो जो आ रहे हैं। 155 के बाद 3 में अलॉटमेंट हुआ ई फॉर्म DI3 में, ठीक है। 154 ने आपको ये यहाँ बता दिया कि विद इन 1 month सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देती है। हमने पढ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में इमीडिएट मिल जाता है, ठीक। फिर सेक्शन 155, एक बार में एक ही दिन होना चाहिए एक पर्सन के पास। 156 जो हमसे ये कह रहा है कि भाई जब आपको ये दिन मिल जाए तो विद इन 1 month इंटीमेट कर दीजिए उस कंपनी या हर उस कंपनी को जिसमें आप डायरेक्टर हैं। अगेन दिस इज अ वेरी ह्यूज टाइम ड्यूरेशन। 1 month हम विद इन अ डे इंटीमेट कर देते हैं, विद इन एन आवर इंटीमेट कर देते हैं जिन कंपनीज में हम डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं या जिन कंपनीज में हम डायरेक्टर हैं, क्योंकि अब तो बिना डिन के डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, ठीक है। ये प्रावधान तो तब आए थे जब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नया आया था, ठीक है। चलो फिर 157 ने हमें बताया कि कंपनी भी ROC को इंटीमेट करती है अपने सारे डायरेक्टर्स का डिन, और ये इंटीमेशन विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम डायरेक्टर अंडर 156 जाता है। 15 दिन बहुत ज्यादा है, इमीडिएट हो जाती है सारी, ठीक है। सेक्शन नंबर 158 ऑब्लिगेशन पुटअप करता है हर उस पर्सन पर और कंपनी पर जहां पर डायरेक्टर है। पर्सन यानी खुद डायरेक्टर और कंपनी जहां डायरेक्टर है, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स फाइल कर रहे हो, हर जगह आपको डिन मेंशन करना है।
आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना. नाउ योर आइडेंटिटी इज दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर. Your identity is that number. So you have to quote it, you have to mention it everywhere. तो समझे? चलो आगे आओ. दिन का आखिरी पॉइंट जो आ रहा है, आखिरी से एक पहले कह सकते हो, वो है कैंसिलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ दिन का, जहां पर आपको रूल नंबर 11 ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स के कुछ पॉइंट है. क्या दिन कैंसिल हो सकता है? हाँ. क्या दिन सरेंडर हो सकता है मैम? हाँ. क्या ये डीएक्टिवेट भी हो सकता है? बिल्कुल. और वो सब सर्कमस्टांसेस या इंस्टेंसेस आपके सामने स्क्रीन पर है. डुप्लीकेट मिल जाए, रॉन्गफुल या फ्रॉडुलेंट मैनर में गलत मिल जाए, या कंसर्न इंडिविजुअल की डेथ ही हो जाए, या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है ऐसा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए, या उसे इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाए, द पर्सन इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट. सब स्थितियों में दिन कैंसिल, सरेंडर या डीएक्टिवेट होता है. जैसे डेथ है तो डीएक्टिवेट होगा, है ना. अनसाउंड माइंड का हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में अगेन आप उसे सरेंडर करवा सकते हो. ऐसा ही एक और पॉइंट यहां पर भी दिया गया है, पॉइंट नंबर ई. देखो यहां ई फॉर्म का मेंशन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलग है ये पॉइंट. यदि कोई व्यक्ति दिन लिया था पास्ट में, पर वो कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर बना ही नहीं और उसने उस नंबर का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करा, तो वो खुद उसे सरेंडर कर सकता है ई फॉर्म DIR 5 में एप्लीकेशन देकर. यस, इट कैन बी सो. यार मैंने लिया था दिन, मुझे लग रहा था मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ किसी कंपनी में, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ. आई वॉज नेवर अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी and I have never used that number for identification purposes. By now, I do not think या भविष्य में भी ऐसा कोई चांस है. It's just that I want to surrender it. कोई liability ना रहे किसी तरह की कोई भी. Just to keep myself on a safer side, I want to surrender. I can do that by filing E form DIR 5. Clear? चलो. आखिरी पॉइंट जो कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से संबंधित है, और वो है यदि डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स में किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं तो क्या करने की जरूरत है, और ये रूल नंबर 12 में है. 11, 12 यहाँ कवर अप हो गए भैया, और 9 भी. ठीक है, क्या करने की जरूरत है. हो सकता है ना भैया ऐसा पर्टिकुलर्स में चेंज, मतलब कैसे मैम? मानो मैंने जो एड्रेस दिया था वो बदल गया, हो सकता है ना. पहले हम किसी और पते पे रहते थे, अब और किसी पते पे रह रहे. मानिए मैंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया, हो सकता है ऐसा. मेनी टाइम्स इट्स नॉट ओनली दैट पोस्ट मैरिज ही ऐसा हो, दे कैन बी रीजंस जहां लोग अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं. कभी आपने अखबारों में देखा है तो ऐसे इश्तिहार भी देते हैं कि मेरा पूर्व नाम ये था और अब मुझे इस नाम से जाना जाएगा. तो अगर ऐसे कोई भी पर्टिकुलर्स चेंज हुए हैं, नेशनैलिटी चेंज हो गई है, ठीक है, या एड्रेस चेंज हो गया है, कुछ भी ऐसा चेंज हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में डायरेक्टर को ये चीज विद इन 30 डेज ई फॉर्म DIR 6 में अपडेट करानी पड़ेगी. ROC में इसकी इंटीमेशन भेजनी पड़ती है ई फॉर्म DIR 6 में. ये ई फॉर्म DIR 6 डिजिटली सर्टिफाई होता है या सिग्नेचर्ड होता है बाय अ PCS, दैट्स कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. ठीक है, तो अगर डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर में चेंज आए हैं तो वो ये कार्य करता है, वो कंपनी को बताता है, फिर कंपनी ROC को बताती है. प्रैक्टिकली होता ये है कि वो डायरेक्टली सिर्फ कंपनी को इंटीमेट करता है, और ये फॉर्म वगैरह भरना, फी का पेमेंट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी करती है, बिकॉज ही और शी इज द डायरेक्टर इन द कंपनी. तो वी इंटीमेट विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज. हर जगह पेनल्टीज है, जो ड्यू डेट से तब काम नहीं हुआ तो उसके बाद आगे पेनल्टीज भी दी गई है, पेनल्टीज भर के भी काम हो जाता है. ठीक है, और यहाँ हमारा दिन का प्रोविजन भी कंप्लीट हो जाता है. 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो जाता है. क्लियर हो गया इतना सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं अपने अगले मेजर सेक्शन पर दिन के, और ये अगला मेजर सेक्शन हमारा है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का, जो 151 में कवर होता है. अब सीक्वेंस वापस लौट आएगा. 149 50 हुआ, 51 52 पढ़ेंगे, 53 से 59 पढ़ लिया, फिर 60 पढ़ेंगे. ठीक है, बस ये सीक्वेंस इसलिए चेंज करा था ताकि आपको समझने में आसानी. 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पर आधारित एक बड़ा इंटरेस्टिंग और छोटा सा सेक्शन है, जो कि ये कहता है
कि लिस्टेड कंपनीज के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि यदि वो चाहे तो अच्छा, ये यदि वो चाहे तो, ये मे देख रहे हैं आप, राइट? अब ये हम मे कब लिखते हैं भाई? जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं, है ना? मे का मतलब ये होता है दैट वी आर गिविंग एन ऑप्शन। लिस्टेड कंपनी मे have one director on its board to be elected by the small shareholders in a manner that is being prescribed under section 151 to be read with rule 7। अब देखो rule 7 आ गया है। 3, 4, 5 आपने पढ़ा, फिर इधर 9, 11, 12 पढ़ा, बीच में छूटे थे तो 7 इधर कवर हो गया। ऐसे पुराने रिकॉल करते जाओगे ना तो सारे रूल्स याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे याद रखने में, अपने आप बस पुराना याद करते जाओ, जब भी कोई नया पढ़ो पुराना रिकॉल करो, ठीक है? सो 151 विथ रूल 7। लिस्टेड कंपनीज के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड में एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं, चाहे तो रख सकती है, चाहे तो ना रखें, ठीक है? एंड ओनली लिस्टेड कंपनीज, दैट मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन लगता ही नहीं है। प्राइवेट कंपनीज डोंट नीड इट। और स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, इंटेंशनली नहीं लिखा, आपने रिकॉल कर लिया होगा और मुझे पता है कि आपने ये रिकॉल कर लिया है। यस मैम, वी नो दैट स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर हुज इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज लेस देन 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए उससे कम का निवेश करने वाला व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर होता है। या स्मॉल से मतलब कद काठी में या उम्र में स्मॉल नहीं, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है? तो ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्टेड कंपनीज ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम ऑन द बोर्ड एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। चलिए देखो इसको, इसके संबंध में प्रावधान क्या है, रूल नंबर 7 क्या बताता है, कैसे अपॉइंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको दिया कंडीशन का वो यही है, लिस्टेड कंपनी सियोमोटो भी कर सकती है या ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर, उनके नोटिस, उनकी एप्लीकेशन के आधार पर। कितने लोग देते हैं ये एप्लीकेशन? तो एटलीस्ट 1,000 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स or 1/10 of the total number of such small shareholders whichever is lower। जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है अपनी कंपनी में, 1000 या उनके टोटल का 1/10, दोनों में से जो भी कम। जैसे 10,000 है तो 1/10 निकाल लो और 1000 निकाल लो, दोनों में से जो भी कम है। इतने लोगों की कम से कम एप्लीकेशन लगेगी, यानी एक सिंगल की एप्लीकेशन के बेसिस पे नहीं होगा भाई ये। हाँ, वी नीड अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, बोर्ड सियो मोटो करना चाहे, दैट मीन्स खुद की मर्जी से करना चाहे तो अच्छा है, ठीक है? सो दे कैन ऑलवेज हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट करा जाएगा, ठीक? कैसे होगा इलेक्शन की प्रक्रिया में, आगे चीजें क्या आएगी? तो अगला पॉइंट हमसे कहता है कि इस स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर को प्रपोज करने के लिए उसका कैंडिडेचर नोटिस के माध्यम से कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग दिया जाएगा, जिस भी मीटिंग में प्रपोज कर रहे हैं। आपके पास एजीएम का नोटिस आया था बीइंग अ शेयर होल्डर, कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस एजीएम में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करवा लिया जाए, तो वहां दे सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी ईजीएम की सूचना आ रही है तब आप दे सकते हैं, ठीक है? सो वट एवर इट इज, यू नीड टू कीप इन माइंड कि मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको ये इंटीमेशन देना है, जिसमें आप उस व्यक्ति का पूरा कैंडिडेचर देते हो, नाम, पता, क्वालिफिकेशंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इवन इनफैक्ट यदि उसके पास कंपनी में शेयर्स हैं तो शेयर्स, उसका फोलियो नंबर, ये सब चीजें हमें इस नोटिस में कंपनी को देना है, ठीक है? नोटिस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी, एक स्टेटमेंट जिस पर वो पर्सन जिसे प्रपोज करा जा रहा है वो सिग्नेचर करेगा और ये बताएगा कि पहली चीज उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बिकॉज नाउ दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बी अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एनी कंपनी, whether you are becoming an additional director, independent director, small shareholder director, or by whatever name you may be called, you need a DIN. Number one, you have a DIN. That's what you need to sign and give on this declaration. Number two, you're not being disqualified to be a director under the provisions of this act. इस एक्ट के कौन से सेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन आता है?
अच्छा, आप तो एक एक बार पढ़े हो ये चीज और ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से, तो आप मुझे बता पाओगे? उधर बैठे बैठे आप ये डिस्कस कर रहे होगे या तो अपने दिमाग में सोच रहे होगे या अब तक जवाब निकल करके आ चुका होगा। ऑप्शन नहीं दे रही, सीधे बता रही 164 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। मेरे ऊपर ऐसा कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिक्लेरेशन इस डायरेक्टर को देना है, ठीक है। एंड तीसरी चीज, कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। अभी दिन पढ़ते समय ऊपर पढ़ा था जब 154 आया था, कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर कौन से फॉर्म में देते हो? कौन से फॉर्म में देते हो? डीआर 1 की 2 की 3 की 4, काय पे रखना है मेरे को उंगली? 2, फिजिकल फॉर्म डीआर 2, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। मुझे क्लियर हुआ? इतनी सब चीजें इंक्लूड करते हुए व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन जो इस नोटिस के साथ कंपनी को भेजा जाएगा। ठीक है भैया, फिर आगे के क्या प्रावधान है जो यहाँ पर दिए गए हैं हमें रूल 7 में? तो रूल 7 आगे ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे एसएसडी शॉर्ट में बोलते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हमारा शॉर्ट फॉर्म है, एसएसडी जिसे बनाया जा रहा है वो इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है कंपनी में, सब्जेक्ट टू द 2 कंडीशन। नंबर 1, वो 149(6) का डिक्लेरेशन दे, 149(6) की कंडीशंस पूरी करे और 149(7) का डिक्लेरेशन दे। कंडीशंस, एलिजिबिलिटी टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये पहला लेक्चर जो था हमारा डायरेक्टर्स रिविजन का। और डिक्लेरेशन 149(7). अब ये एक और तकनीक है, जैसे रूल्स रिकॉल करते हो ना, जहां सेक्शंस कोट होते हैं किसी सेक्शन के अंदर या रूल के अंदर, तो सेक्शन को भी रिकॉल कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 149(7) में डिक्लेरेशन कब कब देते थे? आप उधर बैठे बैठे गैस करो, इधर बैठे बैठे मैं बताऊंगी आपको, मुझे पता है आपका गैस सही भी होने वाला है। पहला डिक्लेरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट यू अटेंड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देते थे, राइट। दूसरा डिक्लेरेशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पर देते थे। और तीसरा, जब कभी पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज आए, इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया में कोई भी चेंज आए, तब आप वो डिक्लेरेशन देते थे। तो दैट्स हाउ 149(7) में ये डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देता है। और यदि आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को भी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हो। एक तीर से 2 निशाना लगा सकते हो, एसएसडी भी हो जाएगा और आईडी भी हो जाएगा। समझ में भी आ गया होगा, राइट। चलो, फिर एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इलेक्शन सिर्फ पोस्टल बैलेट से होता है। अब पोस्टल बैलेट आप पढ़े हो तो यहाँ फिर रिकॉल कर लो पोस्टल बैलेट, मजा लेके सेक्शंस याद नहीं रहेंगे। जनरल मीटिंग्स में पोस्टल बैलेट पढ़े थे। पोस्टल बैलेट इज वन ऑफ द वे ऑफ वोटिंग दैट इज कंडक्टेड प्रायर टू द मीटिंग। और सेक्शन था 100, 107, 8, 9, 10, क्या था? 10। और इसी 10 के साथ पुराने भी याद रख लो। 6 में रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट था, 7 में शो ऑफ हैंड था, 8 में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था, 9 में पोल था, 10 में पोस्टल बैलेट था। लो, याद हो गया। अब बताओ कैसे याद नहीं होगा? समझे क्या? पुराने सेक्शंस का सीक्वेंस जो जो पढ़ लिए हो, रूल्स का सेक्शन सीक्वेंस याद रखते चलो, सब याद होता जाएगा। और कोई बड़ी भारी तकनीक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमानी पड़ेगी, कोई घुट्टी नहीं है जो मुझे आपको पिलानी है। जब जब कोई भी सेक्शन पढ़ो, पुराने जिस सेक्शन का रेफरेंस आए, टर्म का रेफरेंस आए, उससे संबंधित सेक्शन हो, रिकॉल कर लो, सब फिट बैठ जाएगा। ठीक है। पोस्टल बैलेट जब पढ़ा था, ये एक बिजनेस था वहां पर, ये कार्य सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही होता है। देखो यहाँ पर उसको वापस से जस्टिफाई कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे के पॉइंट पर आओ। आगे का पॉइंट सेक्शन 152 की अप्लीकेबिलिटी पे बात करता है बच्चों। अच्छा, अब 152 हमारा अगला ही सेक्शन आना है जो कि फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट पर आधारित है। हाल फिलहाल में यहां जो आपको पढ़ना है वो ये है कि आपके 152 की अप्लीकेबिलिटी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के संबंध में इन पॉइंट्स को छोड़ के नहीं होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 152 एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये पॉइंट्स जो है ये एसएसडी पे नहीं लगेंगे। पहला, लायबल टू टाइबर रोटेशन में नहीं जाएगा। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 इज बेस्ड ऑन लायबल टू रिटायर रोटेशन। तो लायबल टू टाइबर रोटेशन वाला प्रावधान एसएसडी पे नहीं लगता है। फिर क्या होता है मैम, ऑफिस टेन्योर कैसे डिटरमाइन होता है? अभी आ रहा है नीचे के पॉइंट में, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा ठंडे रखो। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि इसका ऑफिस टेन्योर 3 साल से ज्यादा का नहीं होता, एंड दैट टू 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स।
3 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा ऑफिस टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑफिस टेन्योर एक्सपायर होने के बाद ये पर्सन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। लाइफ टाइम ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। अब कूलिंग ऑफ वर्ड मैं आपको बताई थी, और आपको ध्यान होगा ये कूलिंग ऑफ पीरियड मैंने आपको कहाँ बताया था भाई। जैसे बहुत देर मोबाइल चलाते रहते हो तो थोड़ी देर रख देना पड़ता है ना, ताकि ठंडा हो जाए, है ना। कोई भी मशीन बहुत देर तक चलती रहती है तो थोड़ी देर उसको बंद करना पड़ता है ना, ताकि ठंडी हो जाए। क्यों? नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पढ़ते समय भी आपने कूलिंग ऑफ पीरियड पढ़ा था, जो 2 टर्म्स ऑफ अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद आया था। यहां पर एक ही टर्म है अप टू 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स की, और उसके ठीक बाद कूलिंग ऑफ पीरियड है। See the point number 7 that is highlighted on the screen. Point number 7 कहता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की एक टर्म जो अप टू 3 कंसेक्यूटिव ईयर की थी, खत्म होने के बाद वो व्यक्ति अगले 3 सालों के पीरियड के लिए कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरह ऑफिस नहीं होल्ड करेगा। इनफैक्ट वो किसी भी दूसरी कैपेसिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। I'm reading out that point 7. A small shareholders director shall not, for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold the office as a small shareholder director, be appointed in or be associated with such company in any other capacity, either directly or indirectly. यानी SSD तो बन ही नहीं सकते, किसी दूसरी कैपेसिटी में भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। समझ गए? 3 years कूलिंग ऑफ, ठीक है। हाँ, 3 years के कूलिंग ऑफ हो जाने के बाद वापस से अपॉइंट हो सकते हो चाहो तो, और अगर एलिजिबल हो तो, ठीक है। हाँ, सेकेंड लास्ट पॉइंट कहता है 164 के डिस्क्वालिफिकेशंस लग गए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। That's quite obvious. Any person who's disqualified under section 164 cannot be appointed as a director. And then the last point जो हमसे कहता है, रूल 7 का लास्ट पॉइंट जो हमसे कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा कंपनीज में साइमल्टेनियसली एसएसडी नहीं हो सकता। सी द पॉइंट दैट्स हाइलाइटेड एट पॉइंट नंबर 9. No person shall hold the position of SSD in more than 2 companies at the same time. Not more than 2. इसमें भी यदि ये दोनों कॉम्पिटिंग कंपनीज है ना, कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के, कॉम्पिटिटर्स के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एफएमसीजी के बड़े बड़े नाम है, ये कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के, है ना। तो यदि ये कॉम्पिटिटर्स है ना तो फिर वो दोनों में से किसी एक ही में हो सकता, 2 में भी नहीं हो सकता। और अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं है, अलग अलग बिजनेस के हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फॉर 2। क्लियर? समझे बहुत अच्छे से? चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे, और अब बारी आती है आपके अगले सेक्शन की, एंड दैट इज सेक्शन 152. 152 जहां पर कंसेप्ट आएगा फर्स्ट और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, और फिर उसके बाद डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ये थोड़े तगड़े और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पर है, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। The first directors of the company are named in the articles of association of every company, whether you are a public company or you are a private company or you are any other sort of a company. आर्टिकल में नाम होगा। हाँ, यदि आर्टिकल साइलेंट है मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा। If the articles are silent as to the name of the first directors of the company, then in that case, every person who is the subscriber to the memorandum of association of the company, being an individual, shall be considered as the first director of the company. First point का second वाला point. By no provision in the articles, subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed to be the directors of the company until others are duly appointed. क्लियर हो गया ना इतना? इंडिविजुअली डायरेक्टर होते हैं, ये हमने इस चैप्टर के रिवीजन को पढ़ते समय ही पढ़ लिया था। मेंबर्स तो आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकती है। कंपनी कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी बिकॉज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट कैन होल्ड शेयर्स। बट डायरेक्टर्स सिर्फ नेचुरली बॉर्न पर्संस होते हैं,
डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो नेचुरली बॉर्न हुए हैं, यानी मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल। तो ऐसे जितने जितने लोग सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम में मेंशन्ड है वो सब कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिए जाएंगे। समझ गए हैं? चलिए आगे देखिए, आगे का पॉइंट आपसे क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का मतलब, इस फ्रेज का मतलब ये कि यदि एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली अलग से लिखा है तो वो चलेगा, और कुछ नहीं लिखा है, फिर ऐसी स्थिति में हर डायरेक्टर, एवरी, वी सेड एवरी, तो एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग ओनली। का मतलब क्या एक्ट में कुछ और लिखा है? हाँ लिखा है ना, लिखा है ना, डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग के अलावा भी तो अपॉइंट हो सकते हैं। यू रिमेम्बर दैट सेक्शन जो कि यहाँ से बहुत नजदीक है यार, 60s की लाइन का एक सेक्शन है, याद आया कि नहीं आया? आया, 161 पावर्स ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स। तो वहां बोर्ड का अधिकार है, एंड दैट्स व्हाई वी मेंशन ओवर हियर इन 152 सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जैसा जहां एक्ट में जो लिखा है उसे वैसा ही मानिए। अगर 161 में लिखा है कि बोर्ड के पास अधिकार है तो बोर्ड अपॉइंट करेगी। उसके अलावा जो भी डायरेक्टर है उन सबका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होगा। बोर्ड भी जिन्हें अपॉइंट करेगी सर्टेन केसेस में उन सबका भी कंफर्मेशन जनरल मीटिंग में होगा। जैसे एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट जरूर बोर्ड करती है बट कंफर्मेशन उसका भी जनरल मीटिंग में होता है, और जो नहीं हुआ तो उसका ऑफिस उसी डेट से वेकेट हो जाता है। सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, समझ गए ना? जहां जो लिखा है वैसा मानिए। यहां लिखा है कि डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना है, 161 में लिखा हुआ है कि बोर्ड कर सकती है तो बोर्ड करेगी, जिन्हें भी करेगी, जहां उसके संबंध में रिक्वायर्ड है कंफर्मेशन भी करेगी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्टर्स का अपॉइंट होते हैं भैया अपने, अगर फर्स्ट है तो आर्टिकल्स में है, नाम नहीं है किसी का आर्टिकल में तो हर सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टर है। सारे डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए डिन मैंडेटरी, ये तो हमने अभी पढ़ा सेशन की शुरुआत में कि बिना डिन के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, आपके पास डिन होना बहुत जरूरी है और आपको इसे कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अभी बारी आती है आपके बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और ये जो सेक्शन है ये है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, द सेक्शन दैट टॉक्स अबाउट रिटायरमेंट बाय रोटेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट जैसा स्कूल में होता था कि आज जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है कल वो सेकंड पे आ जाएगा और लास्ट बेंच वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। अब परसों क्या होगा, ये सेकंड वाला थर्ड पे जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड पे आएगा, और जो इधर लास्ट पे आया था वो फर्स्ट आ जाएगा। चौथे दिन फिर यही सीरीज दोहराई जाएगी, तीसरा वाला चौथे पे आ जाएगा, दूसरा वाला तीसरे पे आ जाएगा, पहला वाला दूसरे पे आ जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट आ जाएगा। बस ऐसे ही चलेगी हमारी पूरी कहानी लाइबिलिटी टू रिटायर बाय रोटेशन में भी। सेक्शन सब सेक्शन क्या कहता है थोड़ा ध्यान से सुन लो। Unless the articles of the company provide for, और जहां मैंने लिख दिया unless the articles of the company provide for, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आर्टिकल में कुछ लिखा है तो वो मानना, और जो नहीं लिखा है तो फिर ये मानना। unless it provides for, unless जैसे I will show you my notes unless you prepare them on your own self। आपने प्रिपेयर कर लिया तो आई शो इट, मैं मेरे भी दिखा दूं। ठीक है, तो अब आर्टिकल में क्या लिखा हो, सारे के सारे डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन में अगर जाएंगे, एंड दैट टू ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर आपके आर्टिकल में लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन में जाएंगे तो ऐसा होगा, और जो यदि ऐसा नहीं लिखा है तो फिर पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा कि उसके जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके नॉट लेस देन 2/3 ऐसे होंगे जिनके ऑफिस टेन्योर को डिटरमाइन करा जाएगा बाय देयर लायबिलिटी टू रिटायर बाय रोटेशन, एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यदि ये सब जो रिटायर हुए हैं ये एलिजिबल होते हैं तो फिर हम इनको अपॉइंट भी कर लेंगे इन द सेम जनरल मीटिंग। थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि सेक्शन की भाषा ऐसी है,
तोड़ मरोड़ करके अपने लेवल पर समझें इस तरह से कि सेक्शन का स्वाद भी बना रहे और हमें पसंद भी आ जाए, तो प्रोविजन बस इतना सा है 152 सबसेक्शन 6 का बच्चों, कि यदि आर्टिकल में लिखा है कि सारे डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन में जाएंगे, तो सारे के सारे रिटायर होंगे, रीअपॉइंट होंगे। यदि आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है तो फिर ऐसी स्थिति में नॉट लेस देन यानी न्यूनतम मिनिमम 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी ऐसे होंगे जिनके ऑफिस टेन्योर को डिटरमाइन करने के लिए हम लाइबिलिटी टू रिटायर बाय रोटेशन का प्रिंसिपल अपनाएंगे, और जब ये रिटायर होंगे यदि ये एलिजिबल है और विलिंग है तो इनको रीअपॉइंट भी कर लेंगे उसी जनरल मीटिंग में। नॉट लेस देन 2/3 ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट में जाएंगे, बट ये पूरे के पूरे 2/3 थोड़ी जाते हैं। और यही तो सेक्शन का ट्विस्ट है, आओ ट्विस्ट देखें, यही तो सेक्शन का ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि इसमें से एक्चुअली जाते सिर्फ 1/3 है। फर्स्ट एजीएम अदर देन द एजीएम जिसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, उसके बाद जो भी फर्स्ट एजीएम है और फिर हर साल की एजीएम पर दोज हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन का 1/3। लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन कौन है? 2/3, उसका 1/3। 1/3 ऑफ सच डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन विल रिटायर। हाँ, यदि इसमें नंबर जो है वो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में आ रहा है तो जो नियरेस्ट टू 1/3 होता है ये लोग ऑफिस से रिटायर कर देते हैं, ये लोग ऑफिस से रिटायर कर देते हैं। अच्छा, इसको एक सिंपल से कैलकुलेशन से समझ ले तो मानो भैया एक कंपनी है जिसमें टोटल 9 डायरेक्टर है। अब पहले पॉइंट ने क्या बोला था? अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर ऑल। हमारे आर्टिकल में नहीं लिखा ऐसा कि सबके सब लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन में जाएंगे। और हमारी पब्लिक कंपनी, हमारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, 9 डायरेक्टर है। अब ऊपर दिए गए प्रावधान के हिसाब से नॉट लेस देन 2/3 ऐसे होते हैं जिनका ऑफिस टेन्योर रोटेशन से डिटरमाइन होता है। तो हमको क्या करना है? हमको 9 का 2/3 निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? मैथमेटिक्स जैसा सिंपल करते हैं, 3 3 9। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आंसर कभी गलत नहीं होता। एंड 3 2s आर 6, तो 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 3 2 जा 6 नहीं होता, देयर इज नो जा, है ना। 2 1 जा 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कौन कहाँ जा रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा है, और जिसे जब जाना है तब चला भी जाएगा। इट्स 2 2s आर 4, इट्स 2 3s यानी 2 3 टाइम is 6, ठीक है। तो वैसे ही 3 2s आर 6, अब 6 आ गया। ये वो है जिनका ऑफिस टेन्योर डिटरमाइन होता है रोटेशन है। अब इसमें से जाते कितने हैं भैया? नॉट लेस देन 1/3, तो एटलीस्ट 1/3 जाएंगे। अब मैं 6 का 1/3 निकालूंगी, फिर मैं वैसे ही करूंगी। 3 2s आर 6 and 2 1s आर 2, and that means 9 टोटल में से 6 ऐसे हैं जिनको ऑफिस टेन्योर रोटेशन से डिटरमाइन होगा। इस बोर्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिटायरिंग बोर्ड बोलते हैं, है ना। हमारे ये जो बोर्ड है ना, रिटायरिंग बोर्ड कहलाती है। और बचे हुए 3 नॉन रिटायरिंग बोर्ड है। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जैसे नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर, ये रिटायरमेंट में थोड़ी जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायरमेंट में नहीं जाता। अब भी तो पढ़े आप, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रिटायरमेंट में नहीं जाता। ये सब आपके उस 1/3 बोर्ड में आते हैं। कौन सा 1/3? टोटल नंबर का 1/3, क्योंकि टोटल नंबर का 2/3 रिटायरमेंट में जाते हैं। और फिर जो रिटायरमेंट में जाने वाले हैं, यानी जिनको ऑफिस टेन्योर रिटायरमेंट से डिटरमाइन होता है, यानी इस एग्जाम्पल में 6 का 1/3 हर साल जाते हैं। अब 1/3 निकाल तो 2 आया, यानी टोटल 6 थे। 6 में से क्या होगा भाई? पहले साल 2 जाएंगे, फिर दूसरे साल फिर 2 जाएंगे, और तीसरे साल फिर 2 जाएंगे। यानी अगर मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से बता दूं, तो जैसे मानिए वही अपने 9 डायरेक्टर थे, 2/3 निकाला हमने, ठीक है। 2/3 हमने कैसे निकाला? ऐसे निकाला। अब ये 6 वो है जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन में जा रहे हैं, LTR में जा रहे हैं। ये हमारी कैसी बोर्ड है? ये हमारी रिटायरिंग बोर्ड है बच्चों, यानी बचे हुए 3 जो है वो नॉन रिटायरिंग बोर्ड। अब इसमें से जाना कैसे है? तो भैया 6 का 1/3 पहले साल जाएंगे, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। 2 डायरेक्टर्स हैं जो कि हमारे फर्स्ट ईयर में जाएंगे।
अब दो होंगे कौन से भाई, मानिए सपोज में A B C D E F, ये आ गए 6 जो इस रिटायरिंग बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। अब दो निकला, अब दो में से किसको भेजे, A को भेजे कि B को भेजे कि C को भेजे कि D को भेजे कि E को कि F को, ये डिपेंड करता है वो डायरेक्टर जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है। लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस यानी जो सबसे पहले अपॉइंट हुआ था, जिसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सबसे पहला था, लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। और लॉन्गेस्ट अगेन एज से मतलब नहीं है ना, कि एक 85 साल का है और एक 25 साल का है, तो 85 साल वाला पहले जाए या 25 साल वाला पहले जाए, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टर लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, और लॉन्गेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से होता है। तो अब इन शो में से जिसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पहले, मानो सपोज में सी का और एफ का था, पहले साल सी और एफ चले गए, ठीक है। चले गए मतलब घर नहीं चले गए, इट्स जस्ट दैट एक रेजोल्यूशन पास हुआ लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन का, और उसी में बीइंग एलिजिबल एंड विलिंग रीअपॉइंट हो गए। नहीं है एलिजिबल या नहीं है विलिंग तो नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। दूसरे साल बी और ए चले गए, ये फर्स्ट ईयर में चले गए, ये सेकेंड ईयर में चले गए, और थर्ड ईयर में डी और ई चले गए। अब चौथा साल आएगा, तो चौथे में क्या करेंगे, और दो नए लेके थोड़ी ना आएंगे। चौथे साल में आपके वो दो जाएंगे जो पहले साल गए थे, यानी सी और एफ, ये आपके चौथे साल में जाएंगे। पांचवें साल में दूसरे साल वाले जाएंगे, और छठे साल में तीसरे वाले, ये साइकिल ऐसा चलता रहेगा। बीच में से कोई हट जाएगा तो नया आ जाएगा। समझ गए ना, इतना क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ पर कहीं भी यदि आपका आंसर डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 में आता है, तो जो भी नियरेस्ट टू 3 है हम उसे कंसिडर। हो गया इतना, समझ गए कि इतना बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों। चलिए पॉइंट नंबर सी जो स्क्रीन पर है उसमें यही लिखा है कि जिस जनरल मीटिंग में हम इन्हें रिटायर करते हैं ना, वहीं पर यदि ये एलिजिबल और विलिंग है तो हम इनको रीअपॉइंट करते हैं, वही जो अभी आपको बताए, ठीक है। और ये जो रीअपॉइंटमेंट कर लिया जाता है बच्चों, ये रीअपॉइंटमेंट बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है। इट इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस दैट इज ट्रांजैक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। प्रोविजंस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग जहां पढ़े थे वहां ये पॉइंट था, वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस आउट ऑफ दोस 4, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने इन्हीं को रीअपॉइंट कर लिया है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। हाँ, यदि हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन 160 है हमारे दिन का, आज का आखिरी सेक्शन है जो इसके ठीक बाद आने वाला है। किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 160। क्लियर हो गया फंडा। 2/3 का 1/3, टोटल का 2/3 और 2/3 का 1/3, ये लॉजिक याद रखना है, ठीक है। अभी एक और सेक्शन है, इससे पहले कि 152 खत्म हो, और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है अबाउट द ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अभी हमने पढ़ा ना, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल, 2/3, not less than 2/3 of the board of directors of a public company shall be such जिनका ऑफिस टेन्योर रिटायरमेंट से डिटरमाइन होता है, कैलकुलेट होता है। अब ये जो रिटायरमेंट में जाते हैं ना, इस 2/3 का 1/3, तो ऑफिस में क्या हो रहा है, पोजीशन पे क्या हो रहा है, वैकेंसी हो रही है। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है रिटायरिंग डायरेक्टर के जाने से, और मानिए सपोज में वो विलिंग नहीं है या डिस्क्वालीफाई हो गया और हम उसे रीअपॉइंट नहीं कर रहे, तो हमने उसे फिलअप नहीं करा, किसी और को भी अपॉइंट नहीं करा, और हमने एक्सप्रेसली ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास भी नहीं करा कि हम अभी उसे नहीं अपॉइंट कर रहे हैं और किसी और को भी नहीं अपॉइंट कर रहे। रेजोल्यूशन पास होता है ना रिटायरिंग डायरेक्टर के हटने के लिए, उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें क्लियरली हम ये मेंशन करेंगे दैट द डायरेक्टर रिटायरिंग इज अनविलिंग और इज डिस्क्वालिफाइड एंड देयरफॉर इज नॉट बीइंग अपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड, एंड द मीटिंग इज आल्सो नॉट अपॉइंटिंग एनीवन फ्रेशली एज ऑफ नाउ। लिखना पड़ेगा ऐसा। और जो ऐसा एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं करा, यानी रिजोल्यूशन में ऐसा क्लियरली नहीं लिखा, तो मीटिंग खत्म ही नहीं होती, मीटिंग एडजर्न हो जाती है। ऐसी मीटिंग एडजर्न हो जाती है, एडजर्न। और एडजर्नमेंट का डिफॉल्ट रूल मीटिंग्स में क्या पढ़े थे, सेम टाइम, सेम प्लेस, same day in the next week, and if that day is a national holiday, the next day, ठीक है ना। सेम डेट तो आ ही नहीं सकती भाई, है ना, सेम डेट तो अगले हफ्ते नहीं आएगी,
बट जो डे है वो आ सकता है। आज अगर वेडनेसडे तो अगले हफ्ते भी वेडनेसडे आएगा, आज अगर संडे तो अगले हफ्ते भी संडे आएगा, आज अगर ट्यूसडे तो अगले हफ्ते भी ट्यूसडे आएगा। तो सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक पे मीटिंग एडजॉर्न, नेक्स्ट वीक पे मीटिंग एडजॉर्न। अब क्या होगा, अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी आपने वैकेंसी नहीं भरी और ना ही आपने एक्सप्रेसली ऐसा रेजोल्यूशन पास करा, क्लियरली ऐसा रेजोल्यूशन पास करा कि हम ये वैकेंसी अभी नहीं भर रहे हैं, तो भैया रिटायरिंग डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, इसी को तो कहते हैं ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। जो तुमने ये नहीं कहा कि इस वैकेंसी को अभी नहीं भर रहे हैं और जो तुमने किसी और को अपॉइंट भी नहीं करा, तो वो ही वापस आ जाएगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस ये सामने स्क्रीन पर है। पहला, मीटिंग में या उससे पहले किसी मीटिंग में रिजोल्यूशन पुटअप करा गया था उसी डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट के लिए और रिजोल्यूशन लॉस्ट हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, उस पर्सन ने खुद ही अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी, आई एम नॉट एग्रीड, मैं नहीं चाहती आपकी इस कंपनी में डायरेक्टर बनना, आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, एंड इफ आई एम नॉट विलिंग टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर यू कैन नॉट फोर्सफुली अपॉइंट मी। ठीक है, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। डिस्क्वालीफाई 164 का डिस्क्वालिफिकेशन लग गया। ठीक है। एक्ट के किसी स्पेसिफिक सेक्शन में ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत अगर है मेरे अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर जब तक वो पास नहीं होता तब तक ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा। और सेक्शन 162 अगर अप्लीकेबल है तो, और सेक्शन नंबर 162 याद आया, गेस करा होगा आपने, बहुत छोटा सा बारीक सा सेक्शन है। वो सेक्शन जो कहता है कि हर डायरेक्टर जो रिटायर होता है उन सबके लिए वोटिंग इंडिविजुअली होती है, एक सिंगल कॉम्बो या जंबो रेजोल्यूशन नहीं होता, एवरी डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अगर 2-3 ऐसे हैं ना, तो फिर उन 2-3 का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा भाई, हर एक के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन लगता है। 152 सबसेक्शन 6, टोटल का 2/3 रिटायरमेंट में जाता है, 1/3 नॉन रिटायरिंग होता है, और इस 2/3 से 1/3 पहले साल जाता है, बचा हुआ 1/3 दूसरे साल जाता है, कुछ और बच गया तो तीसरे साल, और नहीं तो पहला वाला तीसरे साल, चौथे साल फिर जो पहले साल गया था, ये साइकिल चलता रहता है। यार बच्चों, समझ गए क्या? यहाँ एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन आपके सामने आ रहा है जो कहता है कि 152 सबसेक्शन 6 और 7 अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी पर नहीं लगता। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए और अगर कंपनी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी हो तो ध्यान रखना 152 सबसेक्शन 6 और 7 लगना ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। और आज के लास्ट सेक्शन की ओर हम बढ़ चले हैं, बस आखिरी सेक्शन है और ये सेक्शन है राइट ऑफ एनी अदर पर्सन टू बी अपॉइंटेड ऑन द डायरेक्टरशिप अदर देन द वन हु इज रिटायरिंग। 160, क्या ये पॉसिबल है? यस, एनी अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड टू द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी इन प्लेस ऑफ द वन हु इज रिटायरिंग। तो मैम इसके प्रावधान क्या है? तो भाई इसके प्रावधान आपके सामने स्क्रीन पर है, बड़े छोटे छोटे से पॉइंट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रिटायरिंग बोर्ड का हिस्सा नहीं था, रिटायरिंग बोर्ड का हिस्सा नहीं था, अ पर्सन हु वाज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर इवन इफ वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर एंड इज आल्सो एलिजिबल टू बी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई भी मेंबर उसको एज अ डायरेक्टर प्रपोज करते हुए कंपनी में उसका कैंडिडेचर कंपनी को मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज पहले रजिस्टर्ड ऑफिस पर दे सकता है। या तो मैं खुद दे दूं, I am wanting to be appointed as a director on the board of this company and I'm proposing my candidature. Candidature मतलब अपनी डिटेल्स, अपना रिज्यूमे बताते हुए मैं आपको दे दूं। हाँ, कोई दूसरा मेंबर हो जो मुझे प्रपोज कर रहा है कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति बोर्ड पर अपॉइंट हो, इनका नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस बोर्ड के काम आना है, सो वी आर प्रपोजिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन्स कैंडिडेचर टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग जनरल मीटिंग, और ये 14 दिन पहले करना पड़े, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। रजिस्टर्ड ऑफिस पर आपको ये नोटिस कंपनी के देना है along with an explanation from my end कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे पास दिन है और मेरी कंसेंट है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है,
ये देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पर्सन ना कोई भी हो सकता है, ये कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, यानी कि वो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है। वो कोई एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है, वो कैजुअल वैकेंसी में आया डायरेक्टर हो सकता है, या नॉमिनी डायरेक्टर या ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है। रिटायरिंग बोर्ड के हिस्से में नहीं आते ये लोग सब है, तो इसका कैंडिडेचर प्रपोज हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, खाली कैंडिडेचर नहीं जाता, 1 लाख रुपया का डिपॉजिट फी भी देना पड़ता है, ताकि ऐसे ही फर्जी कोई नहीं दे दे अपना कैंडिडेचर कि भैया कोई भी सड़क चलता व्यक्ति दे दे अपना कैंडिडेचर, लो भैया मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरा कैंडिडेचर सामने, 12वीं पास, है ना। और सो दैट ऐसे अननेसेसरी कैंडिडेचर्स, टाइम कंज्यूमिंग चीजें बोर्ड के साथ ना हो, सो दैट बोर्ड का टाइम अननेसेसरीली खराब ना हो, इसीलिए ये जरूरी है कि हम एक डिपॉजिट फी रख दें। पहले ये अमाउंट बहुत कम होता था, अब हमने इसे बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया। और पता है, यदि आप इलेक्ट नहीं होते, आपको प्रपोज करा जाएगा, वोटिंग होगी मीटिंग में, है ना। यदि आप इलेक्ट नहीं हुए तो ये पैसा रिफंड भी नहीं होना है आपको, या एटलीस्ट 25% ऑफ द वैलिडली कास्टेड वोट्स आपके फेवर में नहीं पड़े तो ये पैसा रिफंड ही नहीं हो। हाँ, इलेक्ट नहीं होते हो, रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, बट एटलीस्ट 25% वोट फेवर में पड़ जाते हैं मीटिंग में, जिन लोगों ने वोट डाला और वैलिड वोट्स 25% है तो रिफंड करते हैं, अदरवाइज पैसा भी गया। तो मतलब समझ लो, फर्जी कैंडिडेचर नहीं दे सकता कोई भी यहाँ। ठीक है क्या, समझ गए अच्छे से। अच्छा, एज फार एज निधि कंपनी इज कंसर्न, सिर्फ 10,000 रुपए का डिपॉजिट चाहिए, 1 लाख रुपया नहीं चाहिए होता है निधि कंपनी। निधि कंपनीज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट्स, राइट। जब कंपनी के पास ऐसा नोटिस आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने सारे मेंबर्स को इस चीज की सूचना दे, कम से कम 7 दिन पहले मीटिंग के दे, या तो वो इंडिविजुअली नोटिस भेज के दे सकती है, या फिर वो सबसे अच्छा काम है उसे अपनी वेबसाइट पे भी पुटअप कर सकती है। वैसे वेबसाइट पे पुटअप करना तो मैंडेटरी, अगर आपकी वेबसाइट है तो मैंडेटरली आपको इसे वेबसाइट पे पुटअप करना पड़ेगा कि कंपनी के पास ऐसा एक एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक कैंडिडेचर आया है एंड द पर्सन विल बी प्रपोज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द अपकमिंग जनरल मीटिंग। बस फिर रेजोल्यूशन प्रपोज होगा, इलेक्ट हो गए तो बढ़िया, आगे की फॉर्मेलिटीज, ई फॉर्म DI-12 फाइल होगा, नहीं हुए 25% वोट भी फेवर में नहीं पड़े तो पैसा भी, अगर पड़ गए तो 1 लाख का डिपॉजिट रिफंड कर देंगे, प्रोपोर्शनेटली होता है वो सब। ठीक है, हालांकि देयर इज सम एक्सेप्शन, 160 प्राइवेट कंपनीज पे नहीं लगता, यानी कि प्राइवेट कंपनीज में बिना ऐसे किसी डिपॉजिट के भी कैंडिडेचर प्रपोज हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज जिसके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय पोस्टल बैलेट, उस पे भी नहीं लगता। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसकी पूरी एंटायर शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट्स मिलके होल्ड कर रहे, उसके ऊपर भी नहीं लगता। और ऐसी ही कोई, जो क्लॉज सी में बताई गई, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी के ऊपर भी ये सेक्शन नहीं लगता। बोला था मैंने, छोटे से पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है और 160 में बस इतना ही है। और आज के सेशन में भी आपके लिए बस इतना ही है। 10 सेक्शन का बंच हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों इस टाइम तक, और अभी आगे आ रहे हैं कुछ और सेक्शंस, इससे पहले कि हम चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट यानी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स को फिनिश ऑफ करें। हाँ जी, नीचे आगे आने वाले सेक्शंस अब क्या है भाई, 160, 1, 2, 3, 4 पर आना है, बट हाल फिलहाल के लिए हम इस चीज को यहीं पर रोकेंगे। 149 से 160 कवर अप हो चुके हैं, रिवाइज कर लीजिए, साइमल्टेनियसली रूल्स रिवाइज कर लीजिए। I'll meet you in the third session for that. For the timing, thank you for listening. Namaste.